Hello dear students, today I am going to continue chapter 3, session number 4 of Organization of Commerce and Management Standard 11 Commerce. Today dear students, I am going to continue with the subsidiary functions of the bank. We already completed and discussion were there under the particular first, that is the functions, main functions, core functions, that 4 functions. Then after in last session I started subsidiary functions, that we completed 5 functions. Let's start with the sixth one. Under 5 functions, just look after that one. First one, that is financial transactions. Second one, transactions associated with the foreign exchange. Third one, we discussed LC, that is letter of credit. फोर्थ वन टीसी ट्रैवलर्स चेक एंड फिफ्थ वन डेली दैट इज डिमांड ड्राफ्ट. तो ये पांचों को हमने डिटेल में स्टडी किया. नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ वन. टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड to credit of a person associated with the bank. This particular point is the same as the letter of credit, but letter of credit is directly connected with the import export, that is in the sense of the payments in the international trade. लेकिन यहाँ पर जो ये सिक्स्थ है इंफॉर्मेशन, दैट इज ओनली फॉर द वन कस्टमर टू द लोकल और दैट रिलेटेड एरिया. वी कैन से वन ट्रेडर इज देयर एंड ही इज इन नीड ऑफ द loan from the other financial institutions, then that financial institution will demand the later that particular information is given in that one, that financial condition of this person is good, that will be given by the bank only. So here bank will help to provide the credit of a person with the bank. The bank does frequent financial transactions on the basis of which the bank is well aware of the financial capabilities of its customers. On the daily basis, traders are making different type of the payments and receiving money from the different other traders or customers. So bank is aware about the financial transaction of that person, that particular customer, because they are always frequently in touch with that customer, also in touch with the particular financial transaction of that person. So that's why in simple words, that person whose account is there in one bank, that bank easily give the information of that person's financial soundness. उसकी financial position क्या है मैंने आपको बताया था पहले भी, वो बैंक अच्छी तरीके से जानती है. So here they will provide the information about the financial capabilities, capacity, position. Any firm or institute considers the information provided by the bank more reliable in such dealing where credit transaction is required, and also the firm or the institute wants to check reliability of the other firm or institute. तो ये सेंटेंस बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है आपको कि कोई भी फर्म या इंस्टीट्यूट है, उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू द फाइनेंस, वो बैंक उसको प्रोवाइड करेगी. सो दैट इंस्टीट्यूट कंसीडर द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बैंक. सो जिसको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बैंक के थ्रू ही कंसीडर करेगी. वॉट एवर द इन्फॉर्मेशन इज गिवन रिलेटेड टू दैट पर्सन, बैंक विल गिव दैट इज 100% रिलायबल. आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो. ओके, वेयर द पर्टिकुलर क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर देयर एंड मोस्टली एज पर अकाउंटेंसी और अकाउंट में आपने देख भी लिया है कि 60-70% ट्रांजेक्शन थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द ईयर आर ऑन द बेसिस ऑफ द क्रेडिट ट्रांजेक्शंस. पूरा कैश ट्रांजेक्शन आप करोगे, आप चाय की टकरी नहीं चला रहे हो, आप कोई छोटा सा शॉप नहीं चला रहे हो, आप कोई एक छोटी सी दुकान नहीं चला रहे हो कि डेली बेसिस पर कैश ट्रांजेक्शन हो गए. यू आर इन अ बिजनेस, यू आर इन दैट टाइप ऑफ द बिजनेस वेयर क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर ऑलवेज रिक्वायर्ड. ओके, तो 50-60-70% समटाइम्स तो એવું કહીશ કે 80% ટ્રાન્ઝેક્શન, રાઈટ, મોસ્ટલી ઇટ ઇઝ ડન ઇન ધ credit way. So simply when the dealing is done with the that credit transaction, it is required that that firm or institute requires or it is in need of the reliability of the other firm. यानी कोई एक चिराग प्रोविजन स्टोर है, उसको महेंद्र प्रोविजन स्टोर यानी बड़ा होलसेलर है, वो कुछ माल देना चाहता है, कुछ गुड्स देना चाहता है, तो वो ये चिराग जो भी प्रोविजन स्टोर चला रहा है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा. क्योंकि क्रेडिट पर 50-60-60-70-80 वॉट एवर द अमाउंट, लाख रुपए का आप माल दे रहे हो, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखनी पड़ती है व्हेन यू आर इन फर्स्ट टाइम विद द डील ऑफ दैट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन. सो ये सब देखना पड़ता है. तो वो जो महेंद्र सुपर स्टोर या होलसेलर है, वो चिराग स्टोर्स का एज एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वो चिराग स्टोर का सब फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा और ये देगा आपको बैंक फाइनेंशियल साउंडनेस क्या है उसकी, और उसके ऊपर वो जो महेंद्र स्टोर है जो भी, वो ट्रस्ट रखेगा क्योंकि बैंक है ना, दैट इज द थिंग. सो इंस्टीट्यूट को 101% सच्ची माहिती मिल जाएगी. सो द बैंक इश्यूज सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट फॉर द सेम.
तो ये याद रखना, 1 मार्क का क्वेश्चन है। ये सर्टिफिकेट ऑलवेज बैंक इश्यू करता है, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। और अब आपको तो मालूम है अकाउंट में आई थिंक 32, 35 या 36 नंबर का आपका फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो वाला चैप्टर है उसमें ही है, सॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी, यानी ही इज एबल टू पे द डेट, सो दैट्स वाई ही इज सॉल्वेंट। ओके, सो याद रखना यहाँ सॉल्वेंट साइंटिफिक वे से डिफरेंट है। तो सॉल्वेंसी मीन्स एबल टू पे द डेट, पैसा वो देता है और दे सकता है। नेक्स्ट वन, 7th वन, टू प्रोवाइड सर्विस एज एन अंडर राइटर। यहाँ अंडर राइटर का मतलब जान लो, जो आपके लिए कुछ गारंटी देता है। એને આપણે ગુજરાતીમાં કહે છે બાહેધરી, તું બાહેધરી લઉં છું બોલ, ધીસ આર ધ કોમન વર્ડ્સ ઇન ગુજરાત, સ્પેશિયલી ઇન ચરોતર, તું એની ગેરંટી લઉં છું બોલ, ધીસ ઇઝ ધ વર્ડ. સો હિયર અંડર રાઇટર મીન્સ વન પર્સન ઇઝ ગિવિંગ ધ ગેરંટી ઓફ અધર પર્સન ઇન ધ સેન્સ ઓફ મની. લેટ્સ સી which type of the financial related information is here. So when a company comes to the market for collection of capital, it always has a fear whether it will get the amount for the issue or not. ये क्वेश्चंस का जो भी आंसर है, छोटा बहुत क्वेश्चन है और ऐसे कई भी क्वेश्चंस अराइज होंगे, इसका आंसर आपको चैप्टर 6 में मिलेगा। लेकिन यहाँ थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूँ कि व्हेन वन पर्टिकुलर कंपनी, अगर छोटी सी बहुत छोटी सी कंपनी है, उसको मार्केट में कुछ लाना है, ओके, सो 101% IPO विल कम। आपको मालूम है अभी जोमेटो का IPO चल रहा है, तो आपने देखा भी होगा जोमेटो IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि जोमेटो अब बड़ी कंपनी हो गई, उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो वो एक इनिशियल पब्लिक को ऑफर करता है टू परचेज द शेयर्स। तो इस टाइम पे ये कॉमन है, जो कंपनी को मार्केट में आना है तो उसको पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे, ओके, और उनके दिमाग में एक फियर, एक डर रहेगा कि दे विल गेट दैट अमाउंट ऑफ इश्यू और नॉट। अब जोमेटो आ रहा है, राइट, एक 155 195 आई थिंक 195 की अमाउंट है उसकी, और या उसका लॉट है, वो उस पैसे से वो आ रहा है मार्केट में कि भी मेरे शेयर परचेस करो, लेकिन उसको एक फियर है कि भी परचेस करेगा कि नहीं, इंडियन पब्लिक मेरे शेयर्स परचेस करेगी कि नहीं। सो कंपनी क्या करती है, कंपनी फाइंड्स डिफिकल्ट टू रन द बिजनेस इफ इट डज नॉट गेट द मिनिमम अमाउंट। SPSC में भी ये पॉइंट आएगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी 90% लोगों को पैसा देना पड़ेगा तभी वो कंपनी का इश्यू सक्सेस होगा। ये भी आपके सिलेबस में है, SPSC में देखेंगे। लेकिन कई बार ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, मिनिमम अमाउंट है, वो कंपनी जुटा नहीं पा सकती, दैट मीन्स दे आर नॉट एबल टू गेट दैट पर्टिकुलर अमाउंट विद इन दैट 21 डेज और विद इन दैट 3 और 4 डेज। 3-4 दिन का काम और 21 दिन के अंदर निपटाना पड़ता है, लेकिन अगर उनको नहीं मिलता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये पूरा प्रोसेस है, हम हमारे सिलेबस में भी है, डिटेल में हम देखेंगे। लेकिन कंपनी को चलाने के लिए उसको प्रॉब्लम होता है, कई बार डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। दैट टाइम राइट, कंपनीज को यह फियर रहती है कि मेरे को पैसे मिलेंगे कि नहीं, तो वो इश्यू मार्केट में शायद नहीं भी चलता। सो एट दिस टाइम द बैंक एंश्योर्स फुल और मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, राइट, यानी अगर आपके शेयर मार्केट में 90% इनिशियल पब्लिक ऑफर में नहीं बिके, तो जितने भी बिके हैं उसमें जितने भी कम पड़ रहे हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए, वो कम पड़ रहे, वो बैंक गारंटी लेगा। फॉर एग्जांपल 87% मार्केट में आपके शेयर बिक गए IPO के, 3% नहीं बिक रहे क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% है। ये एक कंपनीज एक्ट के हिसाब से, और 90% आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है, जितने अमाउंट बाकी है, यानी जितने शेयर नहीं बिके, इसकी जो भी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट बाकी वो बैंक ले लेगी, यानी बैंक वो अमाउंट पे कर देगी और बैंक वो शेयर ले लेगी, उसी को हम बोलते हैं अंडर राइटिंग। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन नहीं है उसी की बात है। अच्छा, इन केस ऑफ रिसीविंग लेस एप्लीकेशन अमाउंट एज कंपेयर टू अंडर राइटिंग बाय बैंक, that amount will be subscribed by bank by way of buying securities। ये मैंने बोला फिर से एक बार कि अगर एप्लीकेशन जो भी मंगवाई है कंपनी, रिसीविंग लेस एप्लीकेशंस, कंपनी ने 1 लाख एप्लीकेशंस मंगवाई है और उसमें से 1 लाख में सिर्फ 5000 एप्लीकेशन नहीं मिले, यानी 95,000 एप्लीकेशंस यानी शेयर्स लोगों ने परचेस कर लिया, शेयर होल्डर्स ने, 5000 नहीं बिके हैं, वो एप्लीकेशन उनको वापस नहीं मिली, अभी नहीं बिके। सो एज कंपेयर टू अंडर राइटिंग दैट शेयर्स, बैंक विल कम, ओके, सो बैंक विल पे दैट अमाउंट एंड सब्सक्राइब बाय द बैंक। सो बैंक वही अमाउंट 5000 शेयर की जो है वो कंपनी को दे देगी और जो भी 5000 शेयर वो परचेस करेगी, ओके, बाय द बाइंग सिक्योरिटीज। तो यही ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए है, बाकी इसकी डिटेल स्टडी है, वहाँ हम देखेंगे। नाउ लेट्स मूव टू अदर वन, लास्ट वन, 8 वन।
टू प्रोवाइड अदर रिलेटेड सर्विसेज सच एज ATM, डीमेट, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट। ये सब डिटेल में है, फिर से समझाता हूँ। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, डीमेट डीमटेरियलाइजेशन, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट जिसे हम एक पर्टिकुलर लॉकर कहते हैं, जो अब जानते हो कि पर ईयर उसका बहुत रेंट नहीं होता है और पर ईयर 30 या 36 बार आप उसको खोल के कुछ ले सकते हैं, यानी महीने में 3 बार, साल भर में 36 टाइम्स आप उसको खोल सकते हैं। यानी आप महीने में 3 बार आप खोलो और उसमें कुछ अपना काम का डालो निकालो। ये सेफ डिपॉजिट वॉल्ट है, अभी चल रहा है, सब लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। ओके, ATM आपको मालूम है, यू विजिटेड और नॉट, आई डोंट नो, बट ATM अब थोड़ा कम हो गया काम। सभी जो भी बैंक्स है उसका काम इसमें मेंटेनेंस बढ़ रहा है, इसलिए कम करें क्योंकि पीपल आर यूजिंग दैट डिजिटल पेमेंट्स UPI। डीमेट कंपलसरी है शेयर्स के लिए नाउडेज, ये सब सिलेबस में, डोंट वरी अबाउट दैट वन। सो द हियर बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स इट्स कस्टमर्स द फैसिलिटीज लाइक ATM, डीमेट एंड सेफ डिपॉजिट वॉल्ट। फिर से बोलता हूँ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, डीमटेरियलाइजेशन, आपके जो फिजिकल सेट्स है वो नाउडेज ऑनलाइन होनी चाहिए, उसको मटेरियलाइज में से आपको डीमटेरियलाइज करवाने हैं। ओके, और सेफ डिपॉजिट वॉल्ट। सो ऑल्सो इन एडिशन विद दिस और टू दिस इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फैसिलिटीज ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड टू द कस्टमर्स। तो यहाँ इस पर्टिकुलर लास्ट 8 में 5 अलग अलग सर्विसेज बैंक की आई, जो सब्सिडरी फंक्शन के तौर पर हम देख सकते हैं। ATM, डीमेट, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। इसमें से सेफ डिपॉजिट वॉल्ट को निकाल दो, वो एक सिंपल सा लॉकर जैसा है। डीमेट हमारे सिलेबस में पीछे, बाकी के जो 3 है ATM, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये हमारे सिलेबस में पीछे है, वह हम डिटेल में देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं खत्म कर रहा हूँ हमारे सब्सिडरी फंक्शंस ऑफ द बैंक। वी ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट 5 इन लास्ट सेशन, टुडे द 3। सो टोटल वी कंप्लीटेड 12 फंक्शंस, 4 मेन फंक्शंस, कोर फंक्शंस एंड सब्सिडरी फंक्शंस आर 8। सो 12 फंक्शंस के साथ हमेशा बैंक चालू रहती है। नाउडेज पहले तो ऐसा भी होता था कि बैंक का काम 3 बजे ख़त्म हो जाता है, 4 बजे वो सब कुछ बंद करता है, लेकिन अब कंपटीशन बढ़ गई है। लेकिन हालांकि चेक रिसीव्स का काम भी अभी 2 बजे तक ही होता है, जो पर्टिकुलर स्टैम्प के थ्रू जाता है, और अगर आप डायरेक्टली जाते हो तो 3 बजे तक आपका चेक लिया जाता है और कैश। लेकिन विड्रॉल के लिए भी एक टाइम लिमिट रखी गई है, और अभी तो नया रूल आया है बैंक में, आपको मालूम होगा, शायद 2022 में आ जाए या फिर इसी साल उसको इम्प्लीमेंट कर दे कि कितने टाइम, अभी तो है कई बैंकों ने कर भी दिया है लेकिन फुल प्रूफ नहीं हुआ है अभी, कि कितनी बार आप विड्रॉल ले सकते हो बाय विजिटिंग बैंक। ओके, बाय ATM में भी सब लिमिट हो गई है कि महीने में आप इतने ही दिन विड्रॉल ले सकते हो, उसके ऊपर जाओगे तो चार्ज होगा। दूसरे ATM में जाओगे, दूसरी बैंक के ATM में जाओगे तो पहले से वहाँ से चार्ज तो रहता ही, आपको मालूम 25 रुपया 50 रुपया होता है। लाइक दैट ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन पर्टिकुलर बैंक विजिट, वहाँ पर भी आप અમુક લિમિટ જે કઈ એમાંથી જ તમે વિડ્રોલ લઈ શકશો। મે બી ગવર્મેન્ટ વોન્ટ ટુ ઇનિશિએટ that particular digital payments, that's why these are type of the changes are there, वो ऐसा बोल सकते हैं। सो ये सब्सिडरी बुक्स हो गई, सॉरी सब्सिडरी फंक्शंस हो गए, और अकाउंट में चला गया मैं सब्सिडरी बुक्स। और अब चाहते हैं हम टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स में। द नेक्स्ट पॉइंट हियर इट इज। So we already discussed this one in a simple word that 4 types are there, saving, current, recurring and fixed deposit, हमने ये देख लिया था आगे। अब यहाँ डिटेल में है तो देखते हैं टाइप्स ऑफ द बैंक अकाउंट्स। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द बैंक अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड फोर्थ वन है फिक्स्ड डिपॉजिट, FDR। चलो स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, वो पहला ही फंक्शन था, वो कलेक्ट करती है डिपॉजिट हमारे पास से। द बैंक डिमांड्स KYC, ये याद रखना, अब सिर्फ बैंक के लिए ये वर्ड नहीं है, ये हर जगह कॉमन हो गया है, दैट इज नो योर कस्टमर। कई जगह ऐसा भी आता है KYC मीन्स नो योर क्लाइंट, लेकिन हमें यहाँ याद रखना है KYC इज इक्वल टू नो योर कस्टमर। आपके कस्टमर को पहचानो, यानी जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हो एक फॉर्म फिलअप किया जाता है KYC, जब भी आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, डॉर्मेंट हो गया, बंद हो गया, फ्रीज हो गया, वॉट एवर राइट। ये सिर्फ बैंक अकाउंट की बात नहीं करता मैं, इसमें डीमेट अकाउंट आता है, इसमें ATM का जो पर्टिकुलर आपने ATM का यूज़ बंद करा तो फिर से आपको KYC करवाना पड़ेगा। कोई भी काम के लिए अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, कुछ कई महीनों से बंद है, तो आपके पास KYC डिमांड किया जाएगा। अंडर द KYC दे आर गिविंग द इंफॉर्मेशन राइट, एंड यू हैव टू फिल अप दैट फॉर्म
with the information. Also sometimes they are demanding the particular identity of the customer. ओके उसमें आप आधार कार्ड कॉमन है, पान कार्ड दे सकते हो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन है तो रेशन कार्ड वगैरह, लेकिन अभी तो कॉमन में चलता है पान कार्ड एंड आधार कार्ड। तो केवाईसी, सो बैंक क्या डिमांड करती है? केवाईसी फ्रॉम द कस्टमर एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अ न्यू अकाउंट और फॉर अदर सर्विसेज ऑफ द बैंक। कई बार आपको नेट बैंकिंग शुरू करना होता है, आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है, बैंक फैसिलिटी देती है लेकिन आपने अभी तक शुरू नहीं करवाया, तो बैंक डिमांड करेगा भी ये फॉर्म फिलअप करो और हमें डॉक्यूमेंट दो, दैट इज कॉल्ड केवाईसी, नो योर क्लाइंट कस्टमर। वही तो है ना, वो कंफर्म करना चाहते हैं। सो फॉर ओपनिंग अकाउंट केवाईसी कंपलसरी, और फिर अदर ट्रांजेक्शन्स, अदर फैसिलिटीज के लिए भी ये केवाईसी किया जाता है। सो दिस इज एज पर द रूल्स ऑफ सेंट्रल बैंक। आरबीआई के रूल के हिसाब से ये इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक मार्क का क्वेश्चन हो सकता है कि अंडर दिस आरबीआई रूल केवाईसी इज कंपलसरी नाउ। So this is a basic information. Now let's move to the first one, savings account. नाम से ही मालूम पड़ता है और आपको मालूम है गुजरात में हर किसी का पहले की बात करते अकाउंट होता ही था, लेकिन अभी तो कंपलसरी स्कूल के थ्रू जब आप गवर्नमेंट या ग्रांटेड स्कूल में होते हो, अभी तो सेल्फ फाइनेंस स्कूलों में भी बच्चों का फर्स्ट स्टैंडर्ड से अकाउंट खुलाया जाता है। सम ऑफ द बेनिफिट्स आर गिवन, दैट्स व्हाई। सो सबका अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट, उसको बचत खाता बोलते हैं। ओके सो सिंपली ये आपको क्यों चाहिए, लेट्स सी। इट मीन्स द अकाउंट इन विच पीपल डिपॉजिट देयर सेविंग्स। तो जो आदमी सैलराइज्ड है, जो सैलरी कमाता है, जो कुछ पैसे कमाता है, वो पैसा वो महीने के अंत में जब बचता है तो उसको किसी ना किसी जगह वो सेव करता है। हम हमारे घर में देखते हैं, ये कॉमन चीज़ है, शायद आपको हंसी आ जाए, लेकिन कोई शर्ट के जो पड़ा हुआ शर्ट है उसके पॉकेट में डाल देंगे, कोई पुराना पैंट है उसके पॉकेट में होगा, राइट। लेडीज़ होते हैं तो वो कुछ किसी ना किसी जगह डब्बे में डालते हैं, राइट। कई बार हमारा कॉम्ब रखने की जगह, ये कॉमन देखा हुआ मैंने, कॉम्ब रखने की जगह वो वहाँ छुपा के रखते हैं। ये एक प्रकार का हम सेविंग बोल सकते हैं। कई चीज़ें ऐसी है, कपड़े के बीच में से गद्दी से निकलता है कुछ, राइट। हमारा तकिया होता है, उसके नीचे जो गद्दा होता है उसके, ये कॉमन चीज़ें हमारे गुजरात में, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। ये बचत है, इसे हम सेविंग बोलते हैं कि इमरजेंसी में ये काम लगे। आपको मालूम है जेंट्स होते तो पर्स के अंदर कोई एक खाना होता है उसमें रखते हैं, ये सब कॉमन है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर आदमी, हर औरत और ऑल द पीपल, राइट, वो लोग किसी ना किसी तरह बैंक में पैसे जमा करते हैं और उसमें से कुछ पैसे जो विड्रॉल लेते हैं, बाकी पैसे विड्रॉल नहीं लेते, वही उनका सेविंग है। वो बैंक का काम ही है, एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड देन आफ्टर विड्रॉल्स। लेकिन यहाँ बैंक क्या करती है, जो पैसे हमने डिपॉजिट किए हमारे लिए तो वो सेव हो गए, सो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड इन दिस अकाउंट। तो जब ये आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, आपके खाते में पैसे, आपने पैसे डिपॉजिट किए, ऐसा पर्टिकुलर सेविंग किया आपने उसको, तो उसमें एक फिक्स्ड रेट से आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, से 4%। एसबीआई अभी 4% देती है, ये साल भर के लिए होता है। हाँ, अगर आपके खाते में एक साल के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उसको निकाल दो और पूरे साल में कोई पर्टिकुलर थ्रू आउट द ईयर जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके हिसाब से 4% के हिसाब से आपके अकाउंट में इंटरेस्ट पड़ता है, उसकी डेट फिक्स है। लेकिन अभी के हिसाब से बैंक ने क्या शुरू किया है, क्वार्टरली। तो बैंक अभी क्वार्टरली इंटरेस्ट देती है। कई लोगों को इसमें लॉस भी होता था पहले, कई लोगों को बेनिफिट भी होता था। सो बैंक जो एक फिक्स रेट से आपको इंटरेस्ट देती है ये अकाउंट में, ये इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक या मेन फंक्शन कहा जा सकता है सेविंग अकाउंट का। तो सेविंग के लिए खोला जाता है, इसमें एक फिक्स्ड रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। द कस्टमर गेट्स इंटरेस्ट एज पर द अमाउंट एंड डेज फॉर विच द अमाउंट रिमेन्स क्रेडिटेड इन द अकाउंट। यानी कि वेन एवर द पर्सन इज डिपोजिटिंग मनी इन दिस पर्टिकुलर सेविंग बैंक अकाउंट, बैंक विल और कस्टमर विल डिपोजिट दैट अमाउंट एंड बैंक विल गिव द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसके हिसाब से आएगा, मैंने बोला सालानी आएगा, पर एनम, राइट। अमाउंट एंड डेज दैट इज डिपेंड अपॉन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम विच इज गिवन बाय द आरबीआई। उसके हिसाब से ये डेज और मंथ या वॉट एवर द टाइम पीरियड इज देयर उसके हिसाब से गिना जाएगा। द अमाउंट इज रिमेन्स। सो फॉर दैट टाइम पीरियड इफ द अमाउंट इज देयर इन योर अकाउंट यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ द पर्टिकुलर इंटरेस्ट, राइट। अगर क्वार्टरली है तो अप्रैल मई जून के 30 तारीख को अगर आपके खाते में इंटरेस्ट पड़ता है तो 30 तारीख के 29 तारीख को आप लाख रुपए डाल दो, आपको उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये कॉमन चीज़ है, ये सोचने वाली बात नहीं। वी आर कॉमर्स, वी आर फ्रॉम कॉमर्स एंड वी आर कॉमर्शियन, तो ऐसा कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे पड़े हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी सैलरी होती है, महीने के 10 दिन के अंदर वो
अंदर एंटर होती है, मीन्स हम उसको जनरली वो क्रेडिट हो जाती है उसमें से, और इसको हम डेबिट करते हैं, यानी हम उसको विड्रॉल कर लेते हैं। सो अब क्या होगा, 20-25 तारीख तक हमारे अकाउंट में कुछ पैसे नहीं लगे, और बैंक क्वार्टरली जो पैसे इंटरेस्ट देती है वो लास्ट में देती है, लास्ट वीक में, तो उसके इस टाइम में हमारे अकाउंट में कुछ बैलेंस ही नहीं होता है। सो ये बैंक का फॉल्ट नहीं है, बैंक तो बताती है कि क्वार्टरली हम इंटरेस्ट काटते हैं, देते हैं, लेकिन बैलेंस इज नॉट देयर। सो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जो भी वो टाइम निश्चित है वहाँ पर आपको क्रेडिट होगा, जो होगा अमाउंट जो भी आपके अकाउंट में उसमें इंटरेस्ट लगेगा। सो द बैंक प्रोवाइड्स फैसिलिटीज लाइक चेकबुक। अगर आप ये सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, ओके, देन यू विल गेट द बेनिफिट्स और फैसिलिटीज लाइक चेकबुक। पहले 50 पेज की आती थी, अगर आप व्यापारी हो, ट्रेडर हो, तो आपके लिए एक अलग अकाउंट, लेकिन उनको 100 पेज की मिलती थी, फिर 50 की, फिर 40 की, और फिर 25 की, अब 20, अब तो 10 देने वाली, ऐसा हमने सुना है। तो लिफलेट जो उसको लिफ्ट बोलते हो, तो चेकबुक देते हैं। एटीएम कार्ड भी आपके पास होता है, उसमें भी प्रीमियम है, प्लेटिनम है, गोल्ड कार्ड, सिल्वर कार्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ दी कार्ड्स आर अवेलेबल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कई फैसिलिटीज़ होती है। लेकिन एटीएम कार्ड भी अब तो कॉमन है, उसकी डिमांड करनी पड़ती है, लेकिन अलग से, अगर आप नहीं करते तो आपको नहीं मिलता है। तो चेकबुक है, एटीएम कार्ड है, वो आपको मिला जाता है इन द पर्टिकुलर अकाउंट, इन दिस अकाउंट, इन दिस पर्टिकुलर सेविंग अकाउंट। ये भी उसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट चेक, ड्राफ्ट एंड कैश इन हिज अकाउंट। सो अगर आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट है, तो आपके नाम का किसी ने चेक दिया तो आप इसमें डिपॉजिट करवा सकते हो। आपके नाम का कोई ड्राफ्ट आया, राइट, तो वो भी मैंने ड्राफ्ट के बारे में समझा है, फिर भी डिटेल है यहाँ इसी पेज पर नीचे, तो हम उसको देखेंगे। सो अगर ड्राफ्ट है तो वो भी आपके खाते में जाएगा, और कैश है वो भी आपके अकाउंट में जाएगी। तो ये 3 चीज़ है, फैसिलिटी आपको मिलेगी सेविंग अकाउंट में। ही और शी कैन विड्रॉ द अमाउंट थ्रू अ चेक और विड्रॉल स्लिप। हालांकि हम मोस्टली जो विड्रॉल लेते हैं वो जनरली विड्रॉल स्लिप से लेते हैं, और अभी के लिए आप सोचो तो हम डायरेक्टली एटीएम से विड्रॉल लेते हैं, और अभी तो डायरेक्ट पेमेंट भी हम यूपीआई से कर देते हैं। लेकिन यू कैन गेट द बेनिफिट्स थ्रू दिस सेविंग अकाउंट, दैट यू कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक टू द विड्रॉल स्लिप। सो वाइट कलर की विड्रॉल स्लिप होती है वो, और वो नहीं है तो आप अपना चेक लेके जाओ, सेल्फ लिख के आप उसको विड्रॉल कर सकते हो, राइट। तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर सेविंग अकाउंट टू विड्रॉ द मनी, पैसे विड्रॉल करने के लिए सही है। द बैंक कंपेल द अकाउंट होल्डर टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस इन हिज अकाउंट। सो बैंक मोस्टली डिमांड करती है कि भाई आप अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखो। सो मोस्टली ऐसा होता है, तो उसके लिए बैंक के पास भी कुछ सेफ्टी रहती है। अगर ये मिनिमम अमाउंट नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो बैंक विल मे बी 3 महीने के बाद क्वार्टरली वो चेक करता है। अगर मिनिमम बैलेंस नहीं है तो बैंक थोड़े बहुत रुपये से पेनल्टी के तौर पर काट लेती है। समझ लो कि आपको 500 रुपये बोला है कि एवरी क्वार्टर होना चाहिए। 500 तो सबके होते हैं ना, लेकिन उसमें अब बढ़ गया, SBI ने 2500 कर दिया है। बड़ी बड़ी बैंक जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, HDFC है, कोटक महिंद्रा बैंक है, राइट, एक्सिस है, वहाँ 10,000 है मिनिमम क्वार्टर बैलेंस रखना पड़ता है उतना। ये क्वार्टर की बात करते हो, यानी 25 से लेकर 30 जून तक, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर 25 से 30 तक, फिर दिसंबर 25 से 31 तक, और फिर मार्च 25 से 31 तक। इन दिनों में आपके अकाउंट में मिनिमम वो बैलेंस होना चाहिए। ये सब है, लेकिन बैंक अपने रूल के हिसाब से वो चेक करती है। अगर क्वार्टरली बैलेंस नहीं है तो वो आपको पेनल्टी शूट कर देगी, पेनल्टी आउट दे देगी, नॉट पेनल्टी शूट, पेनल्टी दे देगी, यानी कि दे विल डिडक्ट द मनी फ्रॉम योर अकाउंट। वो आपको सिर्फ इंटीमेशन देगी कि हमने काट लिया है, बाकी उसका कोई ऐसा इंटीमेशन नहीं होता कि बैलेंस मेंटेन करो वरना हम काट लेंगे। ये सब इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिलअप करते हो तभी हो जाती है, राइट। सो बैंक कंपेल द अकाउंट होल्डर, हमें बताया जाता है कि टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस इन हिज अकाउंट, जो भी है 500, 1000, 1500, 500 है, 1000 है, फिर 2500 है, 3000 है, फिर 5000 है, 10,000, ऐसा एक स्लैब ही नक्की है। जनरली द नंबर्स ऑफ विड्रॉवल्स इन अ सेविंग अकाउंट आर लिमिटेड इन अ मंथ। ये तो बहुत पहले की बात है, राइट, कि पहले 10-12 हुआ करते थे, धीरे धीरे 7 हुए, 5 हुए, अभी तो 3 हो जाएंगे, कभी मालूम भी नहीं पड़ेगा। सो विड्रॉल की थोड़ी लिमिट होती है, राइट, दैट इज़ द लिमिटेशन। ये उसकी लिमिटेशन बोली जाती है कि जब आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो उस टाइम पे ध्यान रखना पड़ता है कि जितनी ज़रूरत हो पैसे महीने में 1-2 बार विड्रॉल ले लो, बारी बारी विड्रॉल करने मत जाओ, क्योंकि उसके ऊपर भी चार्जेस लगते हैं। दूसरी चीज़ ये है, इसके पीछे एक रीज़न भी है कि बारी बारी आप बैंक की विजिट लेते हो 500 रुपये लेने के लिए। अगर आपको विड्रॉल लेना है, बारी बारी आप ATM सेंटर जाते हो, तो फिर सी मेंटेनेंस बढ़ेगा,
जितना भी वो आपको प्रोवाइड करते हैं उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस आएगा, तो फिर प्रॉब्लम ही है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम एंड द आरबीआई दैट डू नॉट विड्रॉ द मनी फ्रिक्वेंटली. जब यूज़ करना है, सैलरी पड़ा है, आपको मालूम कि आपका सैलरी 50,000 है, महीने का खर्चा 35,000 है, तो एक बार में 35 विड्रॉ कर लो, दैट्स ऑल. हाँ, यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ दैट इंटरेस्ट. जब इंटरेस्ट आएगा तब आपके अकाउंट में बैलेंस कम होगा तो आपको नहीं मिलेगा. लेकिन बारी बारी विड्रॉ करने से तो अच्छा है कि एक ही बार में विड्रॉ कर लो. डिपेंड अपॉन यू, आपका खाता है, विड्रॉल आपके हिसाब से चलता है, लेकिन वो लिमिटेड है मंथ में. सो दिस अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और मोर देन वन नेम दैट कैन बी ऑपरेटेड जॉइंटली. सो यहाँ पर ये जो अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, ये इंडिविजुअली मेरे नाम से खोला जा सकता है, राइट. मेरा अकेला नाम है, उससे मैं अकाउंट खोल सकता हूँ. अच्छा, ऐसा नहीं करना है तो मोर देन वन नेम, मेरा और मेरी बीवी का, मेरा और मेरे बच्चे का, मेरा, मेरी बीवी का और बच्चे का, तीनों का, मेरे और मेरे फादर का, मेरे और मेरे मदर का, सबका. आपके लिए भी ये कॉमन है. एक इंडिविजुअल खोल सकता है या फिर उसमें जॉइंट, उसको जॉइंट अकाउंट बोलते हैं. जॉइंट अकाउंट में एक सेकंड होल्डर होता है, उसका भी साइन चलती है, इसलिए बोला गया है यहाँ पर कि मोर देन वन नेम दैट कैन बी ऑपरेटेड जॉइंटली. तो दोनों साथ में उसको ऑपरेट कर सकते हैं. दोनों की साइन से विड्रॉल होता है चेक से, दोनों के ही साइन से पेमेंट होता है चेक से, लेकिन आइदर और लिखा होगा, यानी कि मैं और जॉइंट में मेरा जो अकाउंट, उसमें किसी एक का साइन चलेगा तो भी आपको वो आपका पेमेंट हो जाएगा और काम चलेगा. ये जब आप पेमेंट वेन आप जब आप अकाउंट खुलवाते हो तभी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या करना है. कभी भी साथ में नहीं रखना चाहिए. अकाउंट साथ में रखना चाहिए, लेकिन जो पेमेंट है उसमें दोनों की साइन कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, राइट. वो आइदर और का ऑप्शन मिलता है. Nomination also is there. So nomination can be registered. You can nominate your son, you can nominate your daughter, your wife. जनरली जो अगर मैं हूँ तो मैं मेरी वाइफ और मेरे डॉटर या मेरे सन का नाम लिखूंगा. मेरे फादर का नाम तो मैं नहीं लिखूंगा, मेरे फादर में मेरा नाम होगा. ये आप जानते हैं कि ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है हमारी कंट्री में कि हमारे से कम उम्र का ही हम नॉमिनेशन देते हैं. मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन ऐसा ना भी हो, राइट. मेरे एक अकाउंट में मेरे फादर का नाम है नॉमिनेशन में, सो ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये कॉमन चीज़ है कि जिसको जिसका नॉमिनेशन करवाना हो, राइट. हमारे पीछे हमारे बच्चे ही है तो हम उनका ही नॉमिनेशन देते हैं. So this is the information about saving account. Last line, banks get deposits on a larger scale through these accounts. क्योंकि बैंक्स को सबसे ज़्यादा डिपॉजिट यहाँ से ही मिलता है. देखो, क्योंकि इसके बाद में जो करंट अकाउंट आता है उसमें उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है. द रीज़न इज दैट करंट अकाउंट होल्डर जो होते हैं, राइट, वो जल्दी से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं. उसकी इन्फॉर्मेशन हम देख रहे हैं बाद में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलते हैं वो सेविंग अकाउंट में, और सबसे ज़्यादा डिपॉजिट जो होता है वो भी सेविंग में ही होता है. ओके, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर द सेविंग अकाउंट. अभी 3 बचे हैं, करंट अकाउंट, रिकरिंग एंड फिक्स. तो लेट्स मूव टू द करंट अकाउंट. दिस अकाउंट कैन बी ओपन विद द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस यूनिट. तो ऊपर देखा सेविंग अकाउंट में कई लिमिटेशन, कई कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन देखे उसके, उसमें हमने इंडिविजुअल का अकाउंट खुलवा. यहाँ पर भी यू कैन स्टार्ट अप द अकाउंट, यू कैन ओपन अप द अकाउंट अंडर द नेम ऑफ द वन पर्सन, और ऐसा नहीं करना है तो अंडर द नेम ऑफ द बिजनेस. ओके, उसके नाम से भी आप खुलवा सकते हो, राइट. नॉर्मली ये याद रखना, ऊपर इंडिविजुअल और जॉइंट होता है, यहाँ पर इंडिविजुअल और बिजनेस यूनिट के नाम से होता है. नॉर्मली नो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड इन दिस अकाउंट बट द बैंक में कलेक्ट बैंक चार्जेस. तो ये उसकी एक लिमिटेशन भी है और इसका एक बेनिफिट भी है. आपको यहाँ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. नो इंटरेस्ट विल बी गिवन अंडर दिस पर्टिकुलर करंट अकाउंट, एंड ऑल्सो बैंक विल चार्ज. तो बैंक इज टेकिंग चार्जेस बाय प्रोवाइडिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द फैसिलिटीज अंडर दिस करंट अकाउंट. ओके, चार्जेस तो वैसे भी सेविंग अकाउंट में भी हैं, राइट. जैसे कि आप एटीएम लेते हो तो एटीएम के ईयरली चार्जेस है 169, 189, 199, 269. जैसे आपका एटीएम कार्ड है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, वॉट एवर, जो उसका पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट आपको एटीएम का दिया है, उसकी फैसिलिटीज़ क्या, उसके हिसाब से ऊपर चार्ज लगते हैं. यानी कि उसका मेंटेनेंस, यानी यू आर यूजिंग द पर्टिकुलर एटीएम सेंटर, उसमें एसी चलता है, हमारे पैसे से चलता है, डोंट माइंड. वो स्वाभाविक है कि नेचुरली हम एंटर होते तब एसी शुरू ही होता है, वन वॉचमैन इज दैट. सो मोस्टली वो चार्जेस हमारे पर ही लगते हैं, लेकिन वी आर एबल टू गेट द फैसिलिटीज. सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेविंग अकाउंट. सॉरी फॉर दैट कि मैं वापस चला गया, लेकिन यहाँ करंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और एक्स्ट्रा चीज़ में वो आपसे कुछ चार्जेस कलेक्ट करेगी, ये वाला. सो फैसिलिटीज ऑफ लोन कैन बी प्रोवाइडेड ऑन दिस अकाउंट. सेविंग में भी अब तो लोन मिलती है. आप कई वर्षों से सेविंग अकाउंट चला रहे हो, आपका ट्रांजेक्शन अच्छा है, तो वहाँ आपको बैंक ऑफर करता है. आपको मालूम होगा टेली मार्केटिंग के हिसाब से यू विल गेट द फ़ोन कॉल्स, राइट. टेली मार्केटिंग में फ़ोन आएंगे, लोन चाहिए से साहब, लोन जो है ऐसी चीज़ें होती है, राइट. मोस्टली आपका ट्रांजेक्शन अच्छा होता है तो डायरेक्टली वो
आपका जो भी डेटा है वो लीक हो ही जाता है, आपका फ़ोन नंबर मिल जाता है। पर नॉर्मली यहाँ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बैंक चार्जेस कलेक्ट करती है, लेकिन यहाँ पर आपको जल्दी से फैसिलिटी मिलेगी लोन की। ओके, देयर इज़ नो लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन अ मंथ इन दिस अकाउंट। ये जो अकाउंट है ये सेविंग से बहुत अलग है। यहाँ डेली आप 5 लाख डालो, 6 लाख उठाओ, 6 लाख डालो, 5 लाख विड्रॉ करो, जितना आपका बैलेंस है उसके ऊपर भी मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था ओडी, आपने सीख लिया है जो हमने सेकंड पॉइंट दिखा था मेन फंक्शन में, वहाँ पर जो लैंड होता है उसमें बीओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी ओडी ओवरड्राफ्ट उसको बोलते हैं। वहाँ पर आपको मिलता है फैसिलिटी, इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको लोन के साथ साथ एक फैसिलिटी और भी मिलती है कि यू कैन डू मैनी मोर ट्रांजेक्शन्स थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द मंथ। सेविंग में ऐसा नहीं था, सेविंग में मिनिमम जो भी पर्टिकुलरली आपको जितने भी सेविंग अकाउंट के विड्रॉल थे वो लिमिट में थे मंथ के लिए। यहाँ ऐसा नहीं है, डेली भी आप कितना भी कर सकते हो। सो मंथली यहाँ पर कोई ऐसा विड्रॉल के लिए लिमिटेशन नहीं है। जनरली अ बिजनेसमैन ओपन्स दिस अकाउंट, तो यहाँ ये अकाउंट बिजनेसमैन के लिए है। तो करंट अकाउंट में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाहेंगे हम, तो यहाँ नो लिमिट ऑफ द विड्रॉल्स और मोस्टली इट इज़ फॉर बिजनेसमैन। उसकी लिमिटेशन देखें तो यहाँ इंटरेस्ट नहीं मिलता है आपको और अदर थिंग, हालांकि सब फैसिलिटीज़ के हिसाब से बैंक आपको कुछ चार्ज करेगी, वो आपको पे करना पड़ेगा। सो ये कॉमन सी इन्फॉर्मेशन है सेविंग और करंट की। अगर डिफरेंस आए तो आप लिख सकते हो इसीलिए ये क्या है। ओके, अब 2 बाकी है, हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धीरे धीरे मैं इसलिए जा रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, दैट्स वाई। सो नेक्स्ट सेशन में हम बाकी के 2 देखेंगे टाइप्स में, दैट इज़ रिकरिंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ, केयरफुल।